Good morning to all of you. I hope all of you are healthy and safe at your places and you are enjoying the learning process. Okay? Now, in the process of learning, today we will be taking two topics. This is how we are going to study in our class. One is your static topic. And another is your current topic. Current topic means the topic which is in the news. The topic which is in the news, and you are required to know the in and out of that topic. Okay? So we will read these two topics. One which is current in nature and another which is static in nature. Okay? So let me start with static topic. Okay? Let me introduce you to a word called reactor. Reactor plays an important part in the nuclear power plant. And all of you have come across this word reactor, in newspapers, in magazines, in your TV news channels, whenever you are talking about reactor, right? Because reactor plays an important role in the nuclear power plant. You can say it is the CPU of computer. Like what is CPU in computer? The same is reactor in nuclear power plant. Okay? Now, what is the basic function of reactor? The basic function of reactor is producing power. It's producing power. Underline this word. And how to underline? एकदम जबरदस्त तरीके से, पेपर फटना चाहिए आपका, ऐसे अंडरलाइन करो उसको, पावर. यदि कोई पूछेगा रिएक्टर का काम क्या है तो आप क्या जवाब देंगे? लेट अस से यू आर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स in the mains for an interview, okay? And if any of the board member asks you this question, Mr. So-and-so or Miss So-and-so, what role a reactor plays in the nuclear power plant? Can you tell me in one word? So what you will reply? You will say the most important work of reactor is producing power, okay? And the same thing can be asked in the prelims also. They can frame a question, reactor, the part of reactor in nuclear power plants: A, producing power; B, producing reactor producing producing power; B, reactor plays a peripheral role; C, reactor is not that much important; it's D, none of these. So you will take producing power. Okay, right? Now, there are basically two kinds of reactors. Reactors are basically of two types. Number one is power reactor. And number two is experimental reactor. Number one is experimental reactor, right? इसमें कोई रॉकेट साइंस है? यही है न्यूक्लियर फिजिक्स. और यहाँ से हर साल यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है रिएक्टर के ऊपर. इट इज़ सो सिंपल, राइट? अच्छा, न्यूक्लियर पावर प्लांट में मैंने क्या बताया आपको? एक होता है रिएक्टर, राइट? न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, वो होता है टरबाइन. क्या होती है? टरबाइन. अब टरबाइन क्या होती है, ये सवाल उठेगा. इट इज अ सिस्टम, सिंपल लिखो,
It is a system write it down. It is a system in which rotational motion is there. It is a system in which rotational motion is there. राइट, सिंपल. टरबाइन क्या है? टरबाइन एक कंपोनेंट है, एक सिस्टम है न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर जो घूमता है. रोटेशन माने घूमना, जिसके घूमने से जो रोटेशनल मोशन माने घूमता है, बहुत जोर से घूमता है. दैट्स इट, दिस इज कॉल्ड टरबाइन. राइट. एंड टरबाइन, अब आपको सवाल पूछना चाहिए सर आपने टरबाइन क्यों हमें बताया? बिकॉज टरबाइन इज कॉमन टू ऑल द पावर रिएक्टर्स. टरबाइन is common to all the power reactors. जहां पर भी पावर रिएक्टर होगा वहां पर टरबाइन होगी. राइट, बिकॉज वी आर प्रोड्यूसिंग पावर. एम आई राइट और रॉन्ग? डन. अब आगे चलिए. अब सवाल ये होता है कि इस पे यूपीएससी क्या क्वेश्चन पूछती है. देखो, यूपीएससी हमेशा व्हेनेवर यू आर गोइंग टू स्टडी रिएक्टर, आपको ये फॉलोइंग पॉइंट्स याद रखने हैं. यूपीएससी आस्क नंबर 1 नेम ऑफ द रिएक्टर, नंबर 2 इट्स लोकेशन, राइट और रॉन्ग, और टर्म्स यूज्ड इन रिएक्टर. देयरफॉर हमारे फोकस में क्या चीज आएंगी? ये 3 चीज आएंगी. राइट, क्लियर? अच्छा, यहां पर मैं एक और कॉन्सेप्ट यूज करूंगा न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो यूज होता है, दैट इज फ्यूल. दीज ऑल आर द डिफरेंट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स इन न्यूक्लियर पावर प्लांट. क्या? आई एम टॉकिंग अबाउट फ्यूल. फ्यूल होता है. राइट. अब फ्यूल कौन सा फ्यूल? वो वाला फ्यूल जो फिजनेबल है. राइट. अब आप पूछोगे, अब सवाल ये बनेगा कि फिजनेबल किसे कहते हैं? फिजनेबल क्या होता है? यानी कि आपके पास एक बड़ी रोटी थी जिसको आपने 2 हिस्सों में बांट दिया. राइट. यानी कि 1 एटम, ये एक एटम है, एक एटम है, एंड इट डिवाइड्स इनटू 2. राइट. यानी कि न्यूक्लियस स्प्लिटिंग इनटू 2. एटम में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस इज स्प्लिटिंग इनटू 2 पार्ट, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. और इस स्प्लिटिंग को, दिस स्प्लिटिंग क्रिएट्स ट्रेमेंडियस अमाउंट ऑफ एनर्जी. राइट. ये जो स्प्लिटिंग होती है, स्प्लिटिंग माने टूटना, जब ये टूटता है, डिवीजन होता है इसका, इसके साथ एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है. क्या निकलती है? एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी. राइट. तो उसको हम क्या बोलते हैं? फिजनेबल. और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फिजन. ये मैंने आपको क्या पढ़ाया है? न्यूक्लियर फिजन. ये न्यूक्लियर फिजन है, इसको आप आराम से याद रखिए. दैट इज फाइन. दिस इज अ सिंपल टॉपिक. यही है फिजन. क्या तुम्हें को रॉकेट साइंस लग रही है इसके अंदर? ऐसा कुछ लग रहा है कि इसको समझने के लिए तुम्हारे को एमएससी न्यूक्लियर फिजिक्स करना पड़ेगा? नो. सिमिलरली सवाल होता है, यहीं से एक और टॉपिक में इंट्रोड्यूस कर दूंगा. दिस इज माय वे ऑफ टीचिंग जो इंटररिलेटेड है, न्यूक्लियर फ्यूजन. फ्यूजन माने जुड़ना. फ्यूजन माने जुड़ना. एक स्मॉल न्यूक्लियस है, एक ये है, एंड इट कंबाइंस इनटू बिगर वन. ये क्या बन गया? न्यूक्लियर फ्यूजन. जैसे कि आई गिव एन एग्जांपल, इफ यू आर इन दिल्ली, तो दिल्ली में लोग ज्यादातर क्या खाते हैं? छोले भटूरे. अगर आप दुकान पे गए और आपने कहा भैया ये पैसे लो, यू टेक दिस मनी एंड गिव मी 1 प्लेट ऑफ छोले भटूरे, तो ऐसा होगा कि वो तुमको खाली छोले दे देगा या वो तुमको खाली भटूरे दे देगा? नहीं, वो आपको क्या देगा? छोले प्लस भटूरे. दिस विल बिकम, ये क्या हो गया? छोले प्लस भटूरे, इट विल बिकम छोले भटूरे.
अब ये एग्जाम्पल याद रखना, टू अंडरस्टैंड न्यूक्लियर फ्यूजन। ये क्या हो रहा है? न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है। दाल प्लस चावल, इट विल बिकम दाल चावल, राइट? यहां पर क्या हो रहा है? फ्यूजन हो रहा है, दो चीजें आपस में मिल रही हैं, ठीक है? और यहां पर क्या हो रहा है? स्प्लिटिंग हो रही है। यहां पर क्या हो रहा है? स्प्लिटिंग, यानी कि दो चीज, एक चीज दो भागों में टूट रही है। इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फिशन, और इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन। दिस इज द टू इंपॉर्टेंट रिएक्शंस which take place in nuclear technology, on which entire nuclear technology is based, right? Now, for example, when I'm talking about nuclear fission, you can give an example of hydrogen bomb. Hydrogen bomb. Hydrogen bomb is based on the principle of nuclear fusion. और ये सवाल बहुत सारे एग्जामिनेशंस में बार बार रिपीट होता है। एंड दिस इज ऑन विच प्रोसेस हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड? आंसर इज हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फ्यूजन। कल को एक क्वेश्चन आ गया, हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट? नंबर 1 न्यूक्लियर फिजन, नंबर 2 न्यूक्लियर फ्यूजन, नंबर 3 बोथ 1 and 2, नंबर 4 नन ऑफ दीज। तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? आंख बंद करके टिक करोगे न्यूक्लियर फ्यूजन। ओके, राइट? अब आगे चलते हैं। अब हम किसकी बात कर रहे थे? फ्यूल की बात कर रहे थे। अब फ्यूल का कॉन्सेप्ट में आपने क्या एक दो कॉन्सेप्ट्स और सीखे, फ्यूजन क्या होता है और फ्यूजन रिएक्शन क्या होता है। नाउ आई एम टेलिंग अबाउट फ्यूल। अच्छा, जो फ्यूल होता है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्यूल जो हम यूज करते हैं, उसकी पहली कंडीशन होती है इट हैज टू बी फिजनेबल। अब ये वर्ड का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। वो क्या होना चाहिए? इट हैज टू बी फिजनेबल इन नेचर। एंड एक चीज और आपको याद रखनी पड़ेगी, दैट ऑल रेडियो एक्टिव, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे व्हेन आई विल बी टीचिंग यू केमिस्ट्री। All radioactive elements are not fissionable. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी अंडरलाइन करो। All radio elements are not fissionable. Only some are fissionable. Only some are fissionable. Right? Only some are fissionable. For example, हम किसका एग्जाम्पल लेते हैं? यूरेनियम का लेते हैं। किसका लेते हैं? यूरेनियम। यूरेनियम के दो आइसोटोप्स होते हैं, एक होता है 238, एक होता है 235। 235, राइट? अब होता क्या है, जो यूरेनियम जो है 99.3% जो होता है नॉन फ्यूजनेबल होता है। क्या होता है? नॉन फ्यूजनेबल। ओनली 0.7% इज फ्यूजनेबल। इसको लिखो, ये सवाल बहुत एग्जाम से पूछा गया। 0.7% इज ओनली फ्यूजनेबल। और थोरियम जो है, वन मोर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग यू, थोरियम। थोरियम इज नॉट फ्यूजनेबल। इसको लिख लो, ये सवाल पूछे गए हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर नॉट फ्यूजनेबल। दे विल गिव एग्जाम्पल आयोडीन, दे विल गिव यू पोटेशियम, आयोडीन, थोरियम or any other like sodium. So which is fusionable? They immediate not fusionable, you will put thorium is not fusionable. Okay. अब प्लूटोनियम एक और एलिमेंट होता है, उसका नाम होता है प्लूटोनियम। प्लूटोनियम इट इज फ्यूजनेबल इन कैरेक्टर। ये क्या होता है? ये फ्यूजनेबल होता है। इट इज फ्यूजनेबल इन कैरेक्टर, राइट? अच्छा, अब एक और कॉन्सेप्ट मैं यूज करूंगा, नेचुरल यूरेनियम का मतलब क्या होता है?
what do you understand by natural uranium? Write it down. What do you understand by the term natural uranium? ठीक है, नेचुरल यूरेनियम का मतलब होता है which is available in nature, which is available in nature, right? अच्छा, एक और टर्म आती है, उसको हम बोलते हैं एनरिच्ड यूरेनियम, एनरिच्ड यूरेनियम, राइट? सवाल है ये एनरिच्ड यूरेनियम क्या होता है? अगर आप न्यूज़ को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं तो आपने सुना होगा, ये वर्ड आपने ज़रूर नोटिस किया होगा न्यूज़पेपर्स में, दैट देयर इज़ अ डिस्प्यूट, tussle taking place between Iran and US. Am I right or wrong? Iran-US problem. United States of America has put sanctions on Iran. And why all this dispute happened? Due to the findings, because according to America, Iran is involved in the enrichment of uranium. जब ये वर्ड न्यूज़ में आया, इमीडिएटली आपका रडार, आपके रडार पर आ जाना चाहिए कि ये एनरिचमेंट क्या वर्ड है, कि ये इतना इंपॉर्टेंट वर्ड है कि अमेरिकन्स हैज पुट सैंक्शंस ऑन ईरान, एंड ईरान इज so much rigid in its approach that Iran is also saying that yes, we will continue with the enrichment process, do whatever you want to do. तो ये enrichment है क्या? Is it so important that we need to understand that? तो इसका मतलब होता है enrichment means increasing the concentration of, write it down, enrichment means, this is the new, it wasn't new, that's what I am discussing with you. Enrichment means increasing the concentration of more than 0.7% of uranium. And जब हम इसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देते हैं, इट विल बिकम, बिकॉज हेविली एनरिच्ड यूरेनियम इज अ वेपन ग्रेड मटेरियल. इसको अंडरलाइन करो, ये तुम्हें किसी बुक में भी नहीं मिलेगा. You won't be getting it in any book. Heavily enriched uranium is a weapon grade uranium. And the process, please write it down, and the process by which uranium is enriched, uranium-235 is enriched, it is called enriching process, right? And the process by which uranium-235 is enriched is called enriching process, right? So this is how we basically deal with the static concepts. हमारी जो pedagogy है, pedagogy means पढ़ाने का तरीका ये है कि ये नहीं है कि आपको एक इसकी definition लिखवा दी. No, I believe in doing interlinkages, कि एक कॉन्सेप्ट उठाते हैं हम लोग, उसी कॉन्सेप्ट से दूसरे कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप करते चले जाते हैं, सो दैट आपको जो कॉन्टेक्स्ट है वो आपके माइंड में एकदम क्लियर हो जाए. एंड वी विल कीप टेलिंग यू, इट्स नॉट लाइक अ मोनोलॉग इज नॉट टेकिंग प्लेस बिटवीन मी एंड यू, अदरवाइज थिंग्स विल बिकम वेरी मोनोटोनस. अगर आप वीडियो खोलेंगे, देखेंगे, 10 मिनट देखोगे, बोर हो जाओगे, बंद कर दोगे. उससे अच्छा बेटर है यूट्यूब पे म्यूजिक सुनो, राइट और रॉन्ग.
लेकिन आपके लिए आपका गोल क्या है? सिविल सर्विसेज। तो आप क्या करेंगे? जब भी आप वीडियो देखेंगे, यू हैव टू टेक पेपर एंड पेन विद यू and you have to write it down whatever sir is saying. You have to note down those points here, right? Now this is a static topic that I have given you the way we are going to tackle it in the class for you guys. Now I will take up one current topic which was in the news here, right? Write it down. Right. You must have heard about serological surveys, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म बोल रहे हैं सीरो सर्वेज। It was coming regularly, it is coming regularly in the newspapers also, right? अब सवाल ये उठेगा, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज होगी, दे विल बी इन योर क्लास नोट्स, इट विल बी डिस्कस इन द क्लास, दैट आई एश्योर यू, ओके? अब सीरोलॉजिकल सर्वे का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सीरोलॉजिकल सर्वे? राइट इट डाउन। इट फाइंड्स आउट the number of people who have antibodies specific to disease, राइट? यानी कि सीरोलॉजिकल सर्वे क्या डिटरमाइन करता है? क्या हमारे अंदर एंटीबॉडीज पैदा हो गई हैं, और ये किस डिसीज के कॉन्टेक्स्ट में किया जा रहा है? टू द कोरोना वायरस, व्हाट यू कॉल कोविड-19, राइट? कि आर वी हैव डेवलप्ड द एंटीबॉडीज अगेंस्ट कोविड-19 और नॉट? टू फिगर इट आउट, गवर्नमेंट इज पुशिंग फॉर सीरोलॉजिकल सर्वे, राइट? अब यहीं से एक और आई वॉन्ट टू discuss one more thing which is in the news, which you must know. That for COVID-19 there are two tests. Number one is called RT-PCR test, and another one is called antigen test. Another one is called एंटीजन टेस्ट, राइट? तो नाउ सबसे पहले आई विल डिस्कस RT-PCR. हाउ इट इज डन? इट इज डन थ्रू द नोज एंड थ्रॉट पैसेज. इट इज डन थ्रू द नोज एंड थ्रॉट, नाक और थ्रॉट, गला, ठीक है? ठीक है? इन विच नोज एंड throat swabs are used. Number two, sample is placed in virtual transport media. Sample is placed in viral transport medium. Then it is preserved for analysis. This is how we will be covering. Then another one is antigen test, in which it looks for antibodies present in body, राइट? ये तो आपको पता होगा, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है सलाइवा टेस्ट. ये शायद आपने सुना हो या नहीं सुना हो. दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. सलाइवा
test. So what is the saliva test? Write down few lines. It is considered as a low cost alternative. It is considered as low cost alternative. Low cost alternative. Because in like RT-PCR test, saliva test also converts virus RNA into DNA, then amplifies the DNA to detect the presence of virus. Write it down. Write 2 lines on this. Saliva test, like RT-PCR, converts virus RNA into DNA, then amplifies माने बढ़ा करना, then amplifies the DNA to detect the presence of virus. Right? Thank you very much. Hope you have enjoyed and gained out of this lecture. Thank you very much for listening me so patiently, and I hope you have enjoyed a great time with me. Wish you good luck.